हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व اور سب बरकातुहू। خیریت؟ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस हुआ हूँ तब से खैरियत ही हूँ। आप बताइए तकलीद में क्या हाल है आपके। شکریہ، میں بھی اچھا ہوں۔ अच्छा, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو تقلید جیسے گمراہی سے باہر نکالے اور مکمل اچھا کر دے۔ ضرور ضرور، تکلیف چھڑوا دیے مجھ سے بھی۔ اچھا چھوڑ دی تقلید؟ چھڑوا دیجیے، آپ چھوڑ دیں گے۔ ہوں، ارے بھائی اتنا کمزور ایمان ہے آپ کا کہ تقلید جیسی شریعت کو آپ مانتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں شریعت چھڑوا دیجیے۔ نہیں تو ہوں چھڑوا دیے، مجھے چھوڑنا ہے، آپ چھڑوائیے تو ہوں کیسے چھوٹے گی؟ اگر مجھ سے کوئی جہاں پوچھے جاتے گا نا، وہاں تقلیدی ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا نا ہاں، کہ آپ اتباع کو چھڑوائیے یا چھوڑیے تو میں تو مرنا پسند کروں گا، لیکن اطاعت اور اتباع نہیں چھوڑوں گا رسول اللہ کی، بھلے ہی میرا کم علم ہو۔ لیکن آپ تقلید کو شریعت مانتے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چھڑوا دیجیے۔ اتنی کمزور جھنجھنا ہے تقلید۔ نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر گمراہی ہے تو چھڑوا دیجیے آپ۔ اچھا تو حق کا رہا ہے، مجھے بتا دیں آپ تقلید۔ تو آپ تکلیف چھڑوا دیجیے، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کیسے چھوٹے گی تکلیف؟ اگر گمراہی ہے تو پھر چھوٹ جانی چاہیے۔ اچھا آپ یہ چھڑوا دیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو گمراہی ہے وہ چھوٹ جائے گی، بہت سے لوگ گمراہ ہو کے بھی مرتے ہیں نا۔ نہیں تو ضروری ہے کہ آپ چھڑوانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل کریں گے، لیکن آپ تسلیم کر لیں کہ تقلید گمراہی ہے، پھر میں اس کی گمراہی کی دلیل دیتا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ تکلیف چھڑوائیے نا۔ ہاں دیکھیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر صحیح سند سے موجود ہے کہ فلا تقلدوہ دینکم، کہ تم دین میں کسی کی تقلید مت کرو۔ لیکن معاذ صاحب کر رہے ہیں تو صحابی کی بات نہیں مانتے، اور صحابی کی بات نہ ماننا گمراہی ہے۔ ہوں تو ہو گئے نا گمراہ آپ۔ اب صحابی کی بات مان کے راہ ہدایت پہ آئیے، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جی، تو اب بتائیے آپ کب گمراہی کو چھوڑ رہے ہیں؟ اچھا ایک روایت آ گئی، اب تکلیف چھوٹ جانی چاہیے۔ معاذ بن تکلیف ہے جبل، کیا؟ تقلید کو آپ کچھ بھی سمجھ لیں، اسی کو معاذ بن جبل منع کر رہے ہیں نا، فلا تقلدوہ دینکم، کہ تم دین میں تقلید مت کرو۔ دین میں تقلید نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کرو۔ اچھا کہاں کہاں کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، پاس اگر تم انکار کرتے ہو یعنی تقلید کرتے ہو تو ہاں مردوں کی یعنی بزرگ وفات پا گئے ہیں کر لو، ہاں زندوں کی مت کرو۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو یعنی آپ مانتے ہیں کہ تقلید جو عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کی تقلید کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے روایت پڑھی نا۔ ہاں تو صحابہ کو زندہ مانتے ہیں مردہ مانتے ہیں؟ صحابہ کو زندہ مانتے ہیں، مردہ مانتے ہیں؟ ہاں جن کی ہوں سارے سے ہم مردہ میں نہیں مانتے۔ اچھا کون سے صحابی زندہ ہیں وہ بتا دیں ذرا۔ صحابہ دیکھیے، ہم حیات النبی کے انکاری نہیں ہے، ہم تو بھائی ارے حیات کو مانتے صحابہ ہیں۔ کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ انبیاء کے اور جو صحابہ شہید ہیں ان کی حیات کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی میں صحابہ کی بات باقی کر رہا ہوں، کون سے صحابہ ہیں جو زندہ ہیں وہ بتا دیں۔ جو شہادت پائے وہ زندہ ہیں، اچھا جو شہادت نہیں پائے جو شہادت نہیں پائے وہ اپنی قبر میں ہیں بھائی۔ وہ مردہ ہیں؟ نہیں مردہ تو لفظ نہیں کہوں گا ان کے ابو لیے حنیفہ کے لیے کیا کہیں گے، مردہ ہیں زندہ ہیں؟ بھائی، شہادت ہوئی تو بالکل بھائی وہ ابو حنیفہ کی کہتے ہیں۔ شہادت ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے، بالکل تو ہوئی ہے۔ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہے، تو قبر میں زندہ ہے۔ زندوں کی تقلید کے لیے تو آپ ابن مسعود منع کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہاں ہیں تو زندہ وہ کی تقلید؟ دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، قبر والی حیات کی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یعنی عبداللہ ابن مسعود کا مطلب قبر والی حیات تھا؟ کس کا؟ عبداللہ ابن مسعود کا؟ ہاں قبر والی تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کون سی کہہ رہے ہیں؟ جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے نا، ان کی تو تقلید کرنے دنیا کے لیے سے کہہ رہے ہیں رخصت نا۔ تو انبیاء بھی ہو گئے ہیں، سبھی ہو گئے، دنیا سے ماشاء تو اللہ، سب گئے۔
मुआज साहब वही पूछ रहा हूँ जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी तकलीद के लिए इब्न मसऊद कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, मेरा वही कहना है कि सहाबा भी दुनिया से रुखसत हुए हैं ना, रसूलुल्लाह भी दुनिया से रुखसत हुए हैं ना। तमाम अम्बिया सहाबा हाँ, तमाम तमाम सहाबा, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, सब दुनिया से रुखसत हो गए। तो किस किस की तकलीद आप करते, थोड़ा नाम गिना दे, कौन से सहाबी की तकलीद करते। मुआज साहब बहुत लंबी चल है, आउट ऑफ सिलेबस चला गया क्या? अरे बहुत लंबी जाएगी भाई। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट पूछ लिया क्या? मुआज साहब हल्का करूं? बहुत, हम कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, मसला निकलेगा नहीं, ना आप मानेंगे ना। देखें, जब सहाबी की बात आती है तो मैं सरेखम तस्लीम कर लूंगा। इब्न मसूद ने कहा है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी तकलीद कर लो, जो जिंदा है उनकी तकलीद मत करो। सवाल मेरा वही है कि सहाबा भी दुनिया से गए तो हैं, तो किस पहले सहाबी तो की आप नहीं, तकलीद करते हैं? बात पहले ये होती है तकलीद है क्या। नहीं, वो देखें, कुछ भी हो, अभी तकलीद पे नहीं नहीं, बात नहीं कुछ हो भी रही। ना हो, जब अभी तक इब्न लफ्ज़ का मसूद मायने की नहीं बात पता है तो पे फिर मुआज बात साहब आगे बात कहाँ हो रही चली है। गई। बात आगे कहाँ चली गई जब मतलब ही पहले नहीं बयान में हुआ। अब कुछ भी मतलब बता दें, उसी को इब्न मसूद ने कहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी तकलीद को कहा हो और इस तकलीद को ना कहा हो। जिस नहीं भी तो तकलीद को तकलीद, कहा है उसी को मुझे बता दे कि इब्न मसूद ने कौन सी तकलीद करने के लिए कहा है रजा मुर्दों भाई की। तकलीद क्या है, मैं आप वही क्या पूछ रहा मानते हूँ हैं। कि इब्न मसूद ने कौन सी तकलीद को कहा है कि तुम मत करो। हम कह रहे आप क्या मानते हैं तकलीद क्या है। मेरे मानने से कोई शरीयत थोड़ी तब्दील हो जाएगी या बन जाएगी। मैं नहीं तो कहता हूँ कि मैं इब्न मसूद की बात नहीं, को तस्लीम आप करता हूँ। जिस शरीयत को फॉलो कर रहे हैं आपके मुताबिक जो चीज है, आप क्या मानते भाई हैं तकलीद मेरी को। शरीयत तो बन गई ना, मेरी शरीयत अब्दुल्ला इब्न मसूद है। मुझे बता देना कौन सी तकलीद को उन्होंने मना किया और कौन सी को करने को कहा आप है। नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, मैं तो अपनी रिवायत दिखा रहा हूँ, वो तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ तकलीद है क्या आपके वही नजदीक। तो मुआस्सा पूछ रहा हूँ, कहाँ हुआ है इब्ने मसूद का ये कहना कि तुम दीन में तकलीद मत करो, इससे बढ़िया है कि तुम मुर्दों की तकलीद कर लो। सवाल मेरा यही है कि वो कौन सी तकलीद करने के लिए कह रहे हैं, मैं वही करूंगा, बताइए। हर चीज में तकलीद होती है, आदमी कुफ्र करेगा तो सामने वाला भी उसका अगर कोई वो होगा तो वो भी काफिर हो इब्ने जाएगा। मसूद ने कौन सी तकलीद को करने का और ना करने को मना किया, उसकी वजाहत कर दीजिए, इतना लंबा क्यों ना घुमा रहे करने हैं। का मतलब ये है, जी। जिंदों से करने से ये डर है कि अगर सामने वाला अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई हम किसी की, कोई मान लो किसी की तकलीद कर रहा है, कोई किसी को आलिम समझ रहा है, ऐसा होता नहीं है, पर एक एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अपने रास्ते से गुमराही पर आ जाएगा तो क्या वो जो उसके शागिर्द होंगे, जो उसकी बात को मान रहे होंगे, बिना दलील का मुतालबा करे, तो क्या वो भी गुमराही को बिल्कुल चुनेंगे। दुरुस्त बात। अगर अगर वो मर इसका जाता है मतलब ये, इंसान, सुन लिए, अगर वो मर जाता है इंसान इस दुनिया से, तो उसकी उसने जो गलत किया था उसको कौन वाजे करेगा कि ये गलत था। तो वो गलत जो अगर गलत करके किया होगा तो गलत सामने होगा। तो माशाल्लाह, तो आप बताइए ना कि फिर इब्न मसूद ये जो कह रहे हैं कि जो मर गए हैं उनकी तकलीद कर लो, तो उस मरने में भी तो गलती शुमार हो सकती है, क्योंकि मरने वाला भी तो गलती कर सकता है ना। तो मरने वाला गलती करेगा तो हम उसको पता पता बाकी क्या पहले जो आवाम जो है, जो 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 जिसने कहा अरे है। लड़खड़ा गई जुबान माज साहब की। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, माज साहब की जुबान लड़खड़ा गई मोहम्मद रजा के सामने। अल्लाह अकबर। देखें, जवाब नहीं आ रहा। मेरी बात तो सुनो भाई। मुआज बिन जबल तो ये कह रहे हैं कि अगर आलिम हिदायत पर भी हो, फला तुकल्लिदूहु दीनकुम, तो तुम उसकी दीन में तकलीद मत करो। आप कह रहे हैं कि आलिम हिदायत पर हो उसकी मत करो भाई, ताकि वो गलती भी कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ, मरने वाला भी गलती कर सकता है ना। मरने वाला गलती कर सकता है तो बाद वालों को पता नहीं चलेगा मरने वाले ने सुबहान गलती की अल्लाह। है। तो बाद वाला फिर तकलीद करने वाले को बताएगा क्या? ये जो खुद तकलीद कर रहा है वो बताएगा। जो मर चुका है हाँ, तो उसकी बाद में तो जाके आगे किसी को पता चलेगा इसने क्या गलतियां करी है, कहीं ना कहीं माशाल्लाह। लिख के गया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो अल्लाह बेहतर जाने क्या होना सुबहान उसके साथ। अल्लाह। तो जो आलिम जिंदा हैं उसकी बात भी तो कोई बताएगा ना कि ये गलत है। तो तब तक तो किसकी, तकलीद कर लो जब तक किसी को नहीं पता चल रहा कि ये आलिम है और ये गलती कर सकता है, तब तक तो तकलीद होगी ना रजा जिंदा भाई की। एक बात मैं पूछूं, रजा भाई एक मिनट, नहीं, पहले मैं इब्ने तकलीद क्या मसूद की है बात आपके कर रहा नजदीक। हूँ। मेरे नजदीक तकलीद जो है टट्टी है, ठीक है, उसे आप कर लो गैर और नबी, निकाल दो। मेरे नजदीक गैर नबी की बात को मानना तकलीद है। आपके नजदीक
गैर नबी की बात को बगैर मुतालबा दलील के मान लेना ये तकलीद है कि अच्छा, आप तो तकलीद करके नहीं। तो मैं मोदी की पूछता बात हूँ, मानना क्या है आपके नहीं, नजदीक? आपने जो रिवायत पेश करी है ये अल्लाह, आप कुरान और हदीस के मानने वाले हैं तो ये अल्लाह के रसूल से या कुरान से साबित कर दीजिए कि इस रिवायत को सही कहने वाले अल्लाह के रसूल या अल्लाह ताला है। अभी करता इस हूँ मां रिवायत साहब। को, ठीक है। आप आपका ये कहना कि गैर नबी की बात मानना आपके नजदीक तकलीद है। सवाल वही है ना कि योगी और मोदी की बात मानना भी तकलीद है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा क्योंकि सवाल ये वो भी नहीं है। गैर नबी हैं। हम दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ दीन का मसला कर रहे हैं, अच्छा, अभी कौन से दीन की आसमान तकलीफ के की लोगों बात। की, जिन्नातों की बात कर रहे हैं? सॉरी माजरत, मैं सोच रहा कि आप दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह कहाँ पे थे? दुनिया थे, दुनिया से बाहर थे। आप साहबा कहाँ थे? अबू हनीफा कहाँ थे? दुनिया में थे, दुनिया से बाहर थे। मोदी और योगी का ताल्लुक दीन से है या अल्लाह के रसूल या इमाम मुनीफा का ताल्लुक भाई दीन से? आपकी तारीफ है कि गैर नबी तो है ना, उसमें ये कहाँ है कि जो दुनिया वाला, जो दीन हमें वाला होगा उसी की बात सिंपल मानी से जाएगी? सिंपल गैर जवाब, नबी में तो दुनियादार भी आ गया, काफिर भी आ गया, मुर्तद भी आ गया, नहीं, यहूदी भी सल्फी आ गया। दौर के अहले हदीस सल्फी कहने वाले अपने आप को ये साबित करें कि इस रिवायत जो आपने पेश करी है कि कुरान। मास मास साहब, गैर नबी में योगी आएगा या नहीं बताइए? आप योगी को नबी मानते हैं? आप इस रिवायत को सही मानते हैं कि नहीं? आप योगी को नबी मानते हैं? तरीके देखो दीन भाई, तकलीफ माँ ना साहब की जुबान करें। से ये हो गया कि गैर नबी की बात मानना तकलीद है, तो योगी भी तो गैर नबी है, उसकी बात मानना तकलीद है आपके नजदीक? तो तकलीफ तो आप भी कर रहे हो ना, यानी आप मान गए कि योगी की तकलीद कर रहे हैं? तकलीफ तो आप भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, योगी मैं महाराज मैं की कह रहा हूँ जय। तकलीफ आप अगर टट्टी मान रहे हैं चले भाई, चले, मैं बहुत बहुत कंटिन्यू आपको शुक्रिया।